Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की श्रीमती भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी देवी की हरिनाम संकीर्तन की गौर हरि प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की श्री श्री राधा गोकुलानंद जी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 7वें अध्याय का 18 नंबर का श्लोक। 10th कैंटो चैप्टर 7
Text 18. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratuse Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Soyam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ekada Aroham Arudham Lalayanti Sutam Sati Garimanam Sisor Odhum Na Sehe Girikutavat Ekadarohamarudham Lalayanti Sutam Sati Garimanam Sisaravodhum Na Sehe Girikutavat Ekadarohamarudham Lalayanti Sutam Sati Garimanam Sisaravodhum Na Sehe Girikutavat Ekadarohamarudham Lalayantim Sutam Sati Garimanam Sisaravodhum Na Sehe Girikutavat
ekada, one time, is estimated to have been when Krishna was 1 year old. Aroham, on his mother's lap. Arudham, who was sitting. Lalayanti, was petting. Sutam, her son. Sati, Mother Jashoda. Garimanam, because of an increase in heaviness. Sisho, of the child. Odhum, to bear him. Na, not. Sehe, was able. Girikutavat, appearing like the weight of a mountain peak. Translation and purport by Srila Prabhupada. Translation. One day, a year after Krishna's appearance, Mother Yashoda was patting her son on her lap. But suddenly she felt the child to be heavier than a mountain peak, and she could no longer bear his weight. Purport. Lalayanti, sometimes a mother lifts her child, and when the child falls in her hands, the child laughs, and the mother also enjoys pleasure. Jashoda used to do this, but this time Krishna became very heavy, and she could not bear his weight. Under the circumstances, it is to be understood that Krishna was aware of coming of Trinavartasura, who would take him far away from his mother. Krishna knew that when Trinavarta came and took him away from her mother's lap, Mother Yashoda would be greatly bereaved. He did not want his mother to suffer any difficulty from the demon. Therefore, because he is the source of everything, Janmadasyata, he assumed the heaviness of entire universe. The child was on the lap of Yashoda, who was therefore in possession of everything in the world. But when the child assumed such heaviness, she had to put him down in order to give Trinavartasura an opportunity to take him away and play with him for some time before the child returned to the lap of his mother. Jagat Guru Srila Prabhupada ki जैसा कल वचन दिया गया था, हम लोग गोकुल के एक लीला का श्रवण करेंगे। गोकुलानंद के चरण में भक्तों की इच्छा है कि कुछ गोकुल के लीला का स्मरण किया जाए। हम एक लीला को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप अभी श्लोक की आवृत्ति किए। एकदा रोहमारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिशुर्वोढुम न सेहे गिरिकूटवत्।
एकदा, एक समय। और एक समय का अर्थ है कि जब भगवान लगभग 1 साल के थे। यह लीला उस समय की है जब श्री कृष्ण की आयु 1 साल की है। एकदा। और श्रीमद् भागवतम में भगवान की एक लीला बहुत प्रसिद्ध है, उखल बंधन की लीला। और उस समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। नंद बाबा राजा हैं, उनके दरबार में अनेकों सेवक सेविकाएं हैं, लेकिन उखल बंधन के क्रम में सुखदेव गोस्वामी लीला का प्रारंभ किए हैं कि एकदा गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु। उस समय की स्थिति थी कि गोकुल के अधिकांश लोग इंद्र पूजा के लिए दूसरे स्थान पर चले गए थे। कृष्ण छोटी अवस्था के हैं और वे बहुत चंचल हैं। इसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण को ज्यों ही थोड़ा सा समय मिलता था, अधिकांश समय तो ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को अपने गोद में ही रखती थी। श्री कृष्ण को गोद में रखने में बहुत आनंद का अनुभव है, लेकिन बच्चे कभी कभी तो गोद में चढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हट करते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि गोद से हटने के लिए भी हट करते हैं, उतरने के लिए हट करते हैं। और भगवान को ज्यों ही गोपियां अपने गोद से उतारती थी, अब थोड़ा से फुर्सत मिला और कृष्ण बकैया चल करके, घुटने के बल से चल करके, और जो भी वस्तु दिखता था तो उसको पकड़ करके मुंह में डालने लगते थे। बड़ा सा आंगन है और कोई गोपी यहाँ कृष्ण को रखी और थोड़े दूर पर चूल्हा जल रहा है, लेकिन थोड़ा सा गोपियों का ध्यान इधर उधर गया, वो बड़े तेजी से चूल्हे के पास जाते थे और एक तरफ आग जल रहा है, उसी लकड़ी को अपने मुंह में डालने लगते थे। यह कहीं सब्जी काटने के लिए पहसुल है, पहसुल नाइफ है, एक तरह का विशेष होता है, वो जा करके उसको मुंह में डालने लगते थे। गोपियां तो बहुत भयभीत हो जाती थी कि आग से जल जाएगा, छुरी से उसका मुंह कट जाएगा। वो बहुत ही चंचल थे। अब सोचिए कि जो व्यक्ति आग को मुंह में रख रहा है, पहसुल को, चाकू को, नाइफ को मुख में रख रहा है, उसके सामने मिठाई दिख जाए तो उसको छोड़ेगा। और ब्रजवासियों के सामने समस्या थी कि हम लोग देवता के पूजन के लिए, इंद्र के पूजा के लिए सामग्री बनाएंगे और ये लड़का उसको जूठा कर देगा तो कैसे देवता को भोग लगेगा? ये तो दूषित हो जाएगा ना। और थोड़ा सा भी फुर्सत मिलने पर कृष्ण ये कर ही देते। अरे भाई, घर की बात है तब तो सब लोग टोलरेट कर लेते थे, अब देवता की पूजा करनी है तब तो कम से कम शुद्धता का ध्यान रखना होगा ना। और माँ यशोदा प्रस्ताव दी
कि आप लोग वस्तु ले करके उसी स्थान पर चले जाइए। इंद्र ध्वज स्थान है जहाँ इंद्र की पूजा की जाती थी, और वहाँ सब चीज जब तैयार हो जाए तब मैं बच्चे को लेकर के, कृष्ण को लेकर के आऊंगी। समस्या समझ रहे हैं ना? अब वो चना का दाल सूखने के लिए डाला गया है, मिठाई बनाना है बेसन के लिए, आटा के लिए गेहूं धो करके डाला गया है। ये लड़का उसको जूठा कर देगा तो कैसे भोग लगेगा? तो अधिकांश लोग वहीं चले गए थे। माँ यशोदा अकेले घर में थी, 2-4 दासियां थी, तो कुछ आवश्यक कार्य था तो उसमें नियुक्त कर दी थी। और निर्ममंथ स्वयं दधी, कृष्ण को मक्खन प्रस्तुत करने के लिए वे अपने से दही मथ रही थी। और उस घटना में इसी शब्द से प्रारंभ किया, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु। और एकदा शब्द जो दृश्य दे रहा है और उससे पता चल रहा है कि यशोदा अकेले हैं, बहुत भीड़ नहीं है। और एक आचार्य कहते हैं कि यहाँ जो एकदा शब्द इस श्लोक में तृणावर्त के उद्धार में एकदा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसी सीन को ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब माँ यशोदा उस दिन अकेले थी। और एकदा आरोह मारूढ़, आरोह कहते हैं गोद को, आरोहम अंकम। और माँ यशोदा अकेले हैं और कृष्ण उनके गोद में हैं। बच्चे माँ के गोद में चढ़ना चाहते हैं और माँ को भी सुख है, गोद में रखती है। और कृष्ण यशोदा के गोद में हैं और लालयंती सुतम सती। अब यशोदा के व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं कि सुतम अपना पुत्र है और लालयंती उसका लालन कर रही है, सहला रही है, थपथपा रही है। और यशोदा के लिए कह रहे सती। सती का अर्थ है कि छोटे बच्चे के पालन पोषण में बहुत दक्ष है। देखिए, कभी कभी देखा जाता है कि स्त्री बच्चे को जन्म तो दे दी, लेकिन बच्चे का कैसे लालन पालन करना है उसमें दक्षता नहीं है। अब कभी कभी तो लड़के की माँ नहीं, लड़के के माँ की माँ लड़के के पिता के माँ वही लालन पालन करते हैं। देखिए, हम किसी पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि बच्चों का एक साइकोलॉजी है और उनके लालन पालन का एक विद्या है, तो वह भी जानना होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी बच्चे का सर वो लंबा हो गया है या दब गया है, अभी ये सर कैसे हो गया, तो पता चलता है कि उसकी माँ वो गलत पोस्चर में बच्चे को सुलाया करती थी, उसका प्रभाव आ गया। ऐसे कई एक गाँव में उदाहरण देखा जाता है। और उसको ट्रेनिंग नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। या कभी कभी हम लोग देखते हैं, ब्रज में देखते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय कि छोटे छोटे बच्चे हैं और कड़ी धूप है, और फिर भी बच्चे के सर पर कोई गमछा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, ऐसे ही लेकर के घूम रहे। और वह दक्ष नहीं है। यहाँ माँ यशोदा के लिए शब्द दे रहे हैं सती, और वह पुत्र के पालन में, बच्चे के पालन पोषण में बहुत दक्ष है, यानी कि लालयंती, वह बच्चे का लालन कर रही है।
अब लालन अनेक प्रकार से कर रही है। 1 साल का बच्चा है और उसके सर के जो बाल हैं और कुछ ललाट पर लटके हुए हैं, माँ यशोदा बच्चे को गोद में उठाई और सबसे पहले उसके बाल को ललाट से ऊपर उठाई, सर पर ले गई और बच्चे को चूम रही है, उसका गाल चूम रही है, ललाट चूम रही है और बच्चे को देख रही है। कृष्ण, जैसा कल हम व्याख्या किए थे कि आनंद घन है, स्वाभाविक है, आनंद का विकरण होता रहता है। और कृष्ण को देख करके माँ यशोदा को बहुत आनंद आ रहा है। वो बार बार मुख को चूम रही है, बार बार देख रही है। तो माँ यशोदा तो आनंद का अनुभव कर ही रही है। अब कृष्ण का ऐसा आकर्षण है कि कृष्ण के मुख को देखने के लिए गाय बछड़े भी वहां घेर लिए। माँ यशोदा थपथपा रही है, गोद में रखी है, उठा रही है, और तब तक वो गाय बछड़े भी कृष्ण को देखने के लिए घेर लिए। अब माँ यशोदा ऐसे बच्चे को खिलाते समय ही, लालन करते समय ही अब कहने लगी गाय के तरफ देख करके कि बाबू गाय में जाओगे, गाय के साथ जाओगे। वो स्त्रियां ऐसे बोलती हैं बच्चे से। अब तो कृष्ण उधर ही लपकने लगे कि हाँ गाय में जाऊंगा, गाय के साथ जाऊंगा, गाय के साथ जाऊंगा। वे भाव प्रकट करने लगे, जिद पकड़ लिए। अब मास्टर तो ऐसे विनोद में, आनंद में बोली थी, अब एक समस्या बन गई। वो केवल गाय बछड़े ही नहीं घेरे हैं, ऊपर से पक्षी भी कृष्ण के दर्शन के लिए घेरे हैं। अब एक गायों में जाने का जो हठ पकड़ा है, तो इसको दूर करने के लिए कहे बाबू उड़बा आकाश में जाइबा, ऐसे कहे पक्षियों के साथ उड़ोगे। अब कृष्ण उधर पकड़ लिया, हाँ उड़ेंगे उड़ेंगे उड़ेंगे। अब उधर लपकने लगे। अब इतना जिद पकड़ लिए कि माँ सोची कि एक बार थोड़ा उड़ा दे, तो ऐसे फेंकी और कृष्ण हंसने लगे, गोद हाथ में रोक ली। और अब तो कृष्ण बार बार उसी क्रिया को चाह रहे। वो तो सोची कि एक बार ऐसे फेंक करके रोक लें और थोड़ा उसका मन डाइवर्ट हो जाए, जिद डाइवर्ट हो जाए। लेकिन अब कृष्ण उसी का जिद पकड़ लिए। तो माँ बार बार कृष्ण को ऐसे ऊपर फेंक रही है और गोद में रोक रही है, लालयंती। और बहुत आनंद के साथ बच्चे का लालन कर रही है। तब तक गरिमाणम शिशोर्वोढुम न से है गिरिकूटवत। तब तक अचानक बच्चे का भार बढ़ने लगा। गरिमाणम, अभी तो छोटा सा बच्चा है, बहुत आराम से ऊपर फेंक रही थी, रोक रही थी, लेकिन उसका वजन बढ़ने लगा। और वजन इतना बढ़ गया कि ओढ़ुम न से है। अब माँ यशोदा की स्थिति हो गई कि बच्चे को गोद में रख ही नहीं सकती है। अरे छोटा सा बच्चा है 1 साल का, गोद में रखने में क्या कठिनाई है। इनके ना, बच्चा बहुत भारी लगने लगा। उदाहरण दे रहे हैं, गिरिकूटवत। कूट कहते हैं शिखर को। और बच्चा इतना भारी लगने लगा कि मानो किसी पर्वत का कोई शिखर है। एक अर्थ यह है। यह दूसरा अर्थ किया गया है कि बच्चा बहुत भारी लगने लगा। माँ यशोदा गोद में रख ही नहीं सकती थी और भार के लिए तुलना कर रहे हैं कि गिरिकूटवत। वो गिरी का शिखर नहीं, पर्वत का ढेरी। अब किसी किसी को ऐसा अवसर मिला होगा
जैसे गेहूं का फसल है, चना का फसल है, तो उसको दौरी करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और उसको थोड़ा ऐसे गोला जैसा बना करके रख देते हैं, उसको ढेरी कहते हैं और उसी को कूट कहा जाता है। हम लोग अन्नकूट सुनते हैं, भात ऐसे थोड़ा स्तूप जैसा बना देते हैं तो उसको अन्नकूट कहते हैं। तो अनाज को एक स्तूप जैसा साइज दिया जाता है, रखा जाता है, तो उसको कूट कहते हैं। हम लोग क्या उसको ढेरी कहते हैं, गेहूं का ढेरी, धान का ढेरी। तो इस बच्चे का भार वैसे लगने लगा कि अनाज का ढेरी नहीं, मानो पर्वत का ढेरी हो। अब पंजाब में गेहूं का ढेरी देखे होंगे तो कितनी संख्या है, वो तो करोड़ अरब की संख्या होगी। तो वैसे ही भार कृष्ण का वैसे लगने लगा कि अनाज का ढेरी नहीं, मानो पर्वत का ढेरी लगा हो। अनेक पर्वत को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अरे कृष्ण के अंदर ही सारा संसार है ना। कोई कितना हो पर्वत हो तो सब तो उनके अंदर है, पूरा विश्व का भार है। ते उदाहरण दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कृष्ण का भार वैसे बढ़ गया, मानो पर्वत का ढेरी लगा दिया गया, करोड़ों करोड़ पर्वत को इकट्ठा कर दिया गया। और माँ अभी तो कृष्ण को ऊपर फेंक रही थी आनंद से, लेकिन न से है ओढ़ूं। अब कृष्ण को गोद में रख ही नहीं सकते थे, उसकी क्षमता ही नहीं थी। अब तो मां के सामने बहुत भारी समस्या, अब तो विवश थी, अब क्या करे, अब गोद में रख ही नहीं सकती है। तो कह रहे हैं कि भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। अब कृष्ण को गोद में रखने में कष्ट होने लगा और भार पीड़िता, वो पीड़ा अनुभव करने लगी। अब मजबूरी थी, भूमौ निधाय, वो कृष्ण को भूमि पर रख दी और महापुरुष माँ दध्यो, और वे भगवान के ध्यान में लग गई कि हमारे लड़के को हो क्या गया, कोई रोग हो गया, कोई जादू टोना कर दिया, आखिर ये भार क्यों बढ़ गया। और जगता मास कर्मसु, वह कर्म में लग गए। देखिए सुखदेव गोस्वामी जो शब्द दिए हैं और उसको ठीक ठीक समझने के लिए थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान चाहिए। यहाँ शब्द दे रहे हैं कि महापुरुष माँ दध्यो, अब तो बहुत भारी विपत्ति अनुभव कर रही है। अरे कोई माँ है तो उसका प्राण तो बच्चे में बसता है, और बच्चे का इतना भार बढ़ गया और वो तो भगवान को पुकारने लगी, हे भगवान क्या हुआ, कैसे भारी संकट आ गया। और कह रहे कि जगता मासु कर्मसु, इसका सामान्य अर्थ देखने में लगता है कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वह कर्म में लग गई, बेटे को, पुत्र को भूमि पर रख दी और कर्म में लग गई। अब कर्म में लग गई तो इसका कई एक अर्थ किया गया। जो अति आवश्यक काम था तो सोच रही थी कि उसको निपटा करके तब बच्चे के चिकित्सा की व्यवस्था करूं, किसी वैद्य को बुलाऊं या गुणी को, जो भूत प्रेत झाड़ने वाले हैं, और उनको बुलाऊं। तो उसके लिए जो एकदम अति आवश्यक काम था उसको निपटाने लगी। और दूसरा अर्थ किया गया है कि महापुरुष मादध्यो, अब अपने बच्चे की स्थिति को देख करके, कठिनाई को देख करके वो तो भगवान के ध्यान में निमग्न हो गई। और जगता मास कर्मसु, जगता कर्मसु माँ आस, ऐसे अर्थ किया गया कि अब न वह जगत में थी और न कम कर्म में थी, वह तो इस संसार से उड़ गई। मतलब
वो भावना में ही निमग्न हो गई। इस संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका उसको कुछ अनुसंधान नहीं है। और इतना अवाक हो गई कि कोई काम भी नहीं कर रही है। और श्रीपाद जीव गोस्वामी अर्थ किए हैं कि जगता कर्मसु माँ आस, मतलब जगति माँ आस कर्मसु माँ आस। अब इतना चिंता में पड़ गई कि न वे काम कर रही थी और न दुनिया का उसको कुछ पता चल रहा है। एकदम भाव विभोर हो गई, चिंता में पड़ गई, भगवान का ध्यान करने लगी। यहां एक दो चीज विचार करते चले। वे एक प्रश्न खड़ा किया गया है कि माँ यशोदा तो बच्चे को ऐसे अभी फेंक रही थी, फूल जैसा हल्का अनुभव कर रही थी, और कृष्ण का भार क्यों इतना बढ़ गया। जैसा श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और कृष्ण को पता चल गया कि तृणावर्त आने वाला है, हमको आकाश में उड़ाएगा। और भगवान चिंता में पड़ गए कि हमको माँ यशोदा के गोद से यह असुर आकाश में उड़ा करके ले जाएगा, तो माँ तो इतना चिंता में पड़ जाएगी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, हमसे वियुक्त हो करके वह जीवित ही नहीं रहेगी। और इसलिए माँ अपने गोद से दूर कर दे तो भगवान ही अपना भार बढ़ा लिए, जगत का भार प्रकाशित कर दिए। या भगवान विचार कर रहे हैं कि तृणावर्त आएगा तो हमको उड़ाने का प्रयास करेगा, और यदि मैं माँ के गोद में रहूंगा तो माँ को भी उड़ा करके ले जाएगा। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि हम पर कष्ट आवे तो आवे, हमारी माँ क्यों कष्ट में पड़ेगी। और इसलिए माँ से अलग होने के लिए अपने भार को बढ़ा दिए। भगवान अपने माँ को संकट में नहीं डालना चाहते। और यह तात्विक अर्थ है। इसके साथ ही विद्वानों ने दूसरा भी इस पर विचार दिया है। अब एक साहित्यिक अर्थ किया गया है। जैसे ये जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, और उसको लघु और गुरु का भेद किया जाता है। खास करके संगीत वाले बहुत इसको लघु और गुरु, जैसे अ है तो इस लघु है, और इस पर कोई मात्रा चढ़ा देंगे आ ई तो गुरु हो जाएगा। तो मात्रा के आश्रय से अक्षर गुरु हो जाता है। और एक आचार्य है हरिसूरी जी, वे कहते हैं कि कृष्ण भी तो अक्षरात्मा ही है ना, वो भी तो अक्षर ब्रह्म है। तो मात्राश्रिता होने से, माता के आश्रित होने से गुरु हो गए, स्वाभाविक है भाई, अक्षर ब्रह्म है। जैसे अक्षर मात्रा के आश्रय से गुरु हो जाता है, कोई मात्रा चढ़ा दीजिए अ आ ई उ तो गुरु हो जाता है। तो वे भी माता के आश्रय से गुरु हो गए, अक्षरात्मा न, वे अक्षर ब्रह्म हैं। या एक सिद्धांत दे रहे हैं कि जो युद्ध विद्या के विशारद हैं, तो वे सिद्धांत दिए हैं कि यदि कोई वायुअस्त्र का प्रयोग कर रहा है, लड़ाई होता है, तो शत्रु पर विविध प्रकार के अस्त्र का प्रहार करते हैं। तो कोई वायु अस्त्र का प्रहार कर रहा है तो उसका प्रतिकार अचलास्त्र से ही किया जा सकता है। भाई वायु में बहुत शक्ति है ना। आप लोग कभी कभी न्यूज में पढ़ते होंगे कि इतना तेज आंधी है कि मकान का छत तक उड़ गया। ये टीन का शेड होता है
तो वो तो कभी कभी कई एक किलोमीटर दूर चला जाता है। कोई तूफान आया तो जो बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग हैं पोर्ट के, वो भी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा न्यूज नहीं पढ़े होंगे कि आंधी आने से कोई पहाड़ उड़ करके चला गया। ऐसा नहीं पढ़े हैं कोई न्यूज। तो जो राजा लोग हैं तो यही निर्धारित किए हैं कि शत्रु यदि वायु अस्त्र का प्रयोग कर रहा है तो उसका प्रतिकार पर्वत अस्त्र से करना चाहिए। तो भगवान को भनक हो गया कि बवंडर आने वाला है तो भी अचल रूप हो गए। ये एकदम फिट इक्वेशन है। जब वो वायु के रूप में आक्रमण कर रहा है तो उसे बचने के लिए पर्वत रूप हो गए। और भगवान का वजन बढ़ गया। अब वजन तो बढ़ गया, माँ के सामने मजबूरी थी कि अपने बच्चे को अब गोद में रख ही नहीं सकती थी, तो भूमि पर रखना जरूरी है। वो क्या माँ ऐसे केवल अपनी समस्या दूर करने के लिए बेटे को भूमि पर रख दी? कहे कि ना, माँ विचार कर रही है कि यद्यपि मैं कृष्ण को जन्म दी हूँ, मैं इसकी जननी हूँ, लेकिन हम तो अब सक्षम नहीं हैं। और जैसे मैं कृष्ण की जननी हूँ तो हे भूमि, तुम तो सारे प्राणी की जननी हो, सबका पालन पोषण करती हो। इस संसार में कोई भी प्राणी है तो उसका पालन पोषण तो पृथ्वी करती है, सबको भोजन देती है। जो गाय हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबको तो भोजन पृथ्वी दे रही है। तो माँ जसोदा विचार कर रही है कि हमारा नाम भी धरा है और तुमको भी धरा कहते हैं, तो एक तो नाम का मेल है। तो हम तो एक व्यक्ति की जननी हैं, एक व्यक्ति की रक्षा करने वाले, और तुम सारे प्राणियों की जननी हो, तो आखिर कृष्ण के भी तो जननी है। तो हम तो अब फेल हो गई अपने बेटे की रक्षा करने में। कृष्ण तुम्हारा बेटा है, अब तुम्हारे गोद में मैं सौंप रहा हूं, तुम इसकी रक्षा करो। भाई किसी का पुत्र है और उसके पालन पोषण में खुद सक्षम नहीं है तो दूसरे का सहयोग लेता है। आप लोग देखते हैं कि कभी कभी माता पिता की क्षमता नहीं है अपने बेटे को पढ़ाने, वो अपने ननिहाल में भेज देते हैं, वहाँ सुविधा वो पढ़ लेता है। और माँ जसोदा और विचार कर रही है कि मैं माँ तो हूँ लेकिन असक्षम हूँ, लेकिन जैसे और प्राणियों के तुम माँ हो तो कृष्ण की भी माँ हो, तो तुम सक्षम हो, अब तुम ही इसका पालन पोषण करो, इसको तुम ही संभालो। और इस भावना से वे भूमि पर रख दी और अभी घर में गई, भगवान की चिंता में लगी थी और सोच रही थी कि क्या करें, किसी डॉक्टर को बुलावें या किसी ओझा को, तांत्रिक को बुलावे, इस पर ये जादू टोना है कि कोई रोग है, तो ऐसी चिंता में थे कि क्या करें। और तब तक दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहार आसीनम मर्भकम। और माँ जसोदा कृष्ण को जहाँ भूमि पर रखी और कृष्ण तो वहीं बैठे थे चुपचाप, और तब तक आंधी आ गया, चक्रवात आ गया, बवंडर। आंधी और बवंडर में थोड़ा अंतर होता है। आंधी में तो हवा तेज बहती है, एक साइड में बहती है, लेकिन बवंडर में घूमते हुए और घास पात जो आता है तो उसको वो राउंड में घुमाते हुए हवा चलता है, तो उसको बवंडर कहते हैं। तो तृणावर्त ये आवर्त था, ये सर्कुलर वे में चल रहा था। और तृणावर्त कंस दैत्य प्रणोदित, वास्तव में ये दैत्य था, तृण के आवर्त के रूप में था
और कंस इसको भेजा था चक्रवात स्वरूपेण। वो चक्रवात के रूप में आया और जहार आसीन मरभक, बच्चा वहां बैठा था उसको उड़ा ले गया, उसका हरण कर लिया। और ये जो दैत्य है उसका नाम है तृणावर्त। आवर्त मतलब घुमाना, आवर्त घुमाने को कहते हैं, और इसका नाम तृणावर्त है। जैसे कोई सूखा हुआ घास है तो उसको उलाटना पलाटना इधर उधर घुमाना बहुत आसान है। सूखा हुआ घास है तो इस उधर उसको उड़ाने में क्या प्रयास है। तो दैत्य का नाम है तृणावर्त, जो सारे संसार को घास के समान, सूखे घास के समान आवर्तित कर दे, डमाडोल कर दे, पेर दे, तो उसको कहा जाएगा तृणावर्त। जो पूरे संसार को आवर्तित कर दे, घुमा दे, तो वह तृणावर्त है। वो बहुत शक्तिशाली था और वह आया और कृष्ण को उठा करके ले गया। कह रहे हैं कि गोकुलम सर्वमावृणन मुष्णन चक्षुन से रेणु भी ईरयन सु महाघोर शब्दे न प्रदिशो दस। जब तृणावर्त आया, वो बवंडर आया, तो वर्णन कर रहे हैं कि गोकुलम सर्वमावृणन, वे गोकुल को पूरा ढक लिया, मुष्णन चक्षु से रेणु भी, और लोगों के आंख में धूल भर दिया। और ईरयन सु महाघोर, बहुत भयंकर आवाज हो रही थी, सांस 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 से हवा की आवाज। वो कह रहे हैं कि प्रदिशो दशा, सब जगह आवाज भर गया, धूल भर गया। भाई धूल क्यों भर दिया, आवाज क्यों भर दिया? और देखिए ये चोरों की साइकोलॉजी है कि कितना भी वो शक्तिशाली हो, कितना भी हथियार से लैस हो, लेकिन उनको भय रहता है। वो कोई चीज प्रकट नहीं चुरा पाते हैं। और वो तो आया था कृष्ण के चोरी करने के लिए, और योजना किया कि हम कौन सा उपाय करें कि कोई देखे ना। और सबके आंख में धूल भर दिया। अब धूल भर गया आंख में तो आंख खोलेगा ही आदमी, नहीं देखेगा कैसे। अब मान लीजिए कि देख तो नहीं पाएगा, लेकिन लड़के को चुरा करके ले जाएंगे तो रोएगा ना, चिल्लाएगा ना, तो सुनेंगे ना। तो सांस 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 ऐसे वो आवाज भर दिया कि अब ये बच्चे के क्रंदन का, जो रोने का आवाज भी न सुनाई दी। ये चोर लोग ये टेक्निक अपनाते हैं। अभी हम रिसेंटली कहीं पढ़े थे कि कोई ग्रुप चोरी किया, तो कोई अब उनके गतिविधि को जान न ले तो वहीं डीजल चालू कर दिया उसका आवाज आ रहा था, तो अब दूसरा आवाज उनको सुनाई नहीं दिया। तो धूल सब जगह भरने का एक आशय है कि सबके आंख को बंद करना चाहता, और सब जगह शब्द भरने का, आवाज भरने का आशय है कि वही आवाज छा जाए, बच्चे के शोरगुल सुनाई न पड़े। वो भर दिया और आकाश में लेकर के गया। अब एक फिर प्रश्न उठाया गया है कि कृष्ण का वर्णन किया गया है कि वे आकाश के पीक के समान, नहीं, पर्वत के शिखर के समान, पीक ऑफ माउंटेन, वैसे भारी हैं। और वो तृणावर्त उनको आकाश में कैसे उड़ा ले गया। हरीश्वरी जी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि मानो भगवान इस दुनिया के लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि आयातो यदि दुर्जनोपि सहसा स्वीयालये साधुना प्राक् प्रत्युद्गमनेन सत्कृतिम प्रदम नेयस ततस्तेन चेत ततः चेततेन। कह रहे हैं कि कोई दुष्ट प्रकृति का भी व्यक्ति है, वह
बहुत दुष्ट प्रकृति का, उसका नेचर बहुत खराब है, लेकिन कदाचित वैसा व्यक्ति भी अपने दरवाजे पर आ गया। और दरवाजे पर आ गया तो साधुना सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है कि एक बार तो खड़ा हो करके उसका सत्कार करे। दुर्जन व्यक्ति भी अपने दरवाजे पर आ गया तो उसका सत्कार करना होता है। गांवों में आज भी ये सब है, बातें प्रचलित हैं। वो लड़ाई है, झगड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति दरवाजे पर आ जाता है तो उसका व्यक्ति सत्कार करता है। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि मानो भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि आयातो यदि दुर्जनों सहसा स्वीयालय साधुना, दुर्जन व्यक्ति भी अपने दरवाजे पर आ गया, अपने घर पर आ गया, तो सज्जन पुरुष का यही कर्तव्य है कि खड़ा होकर के उसका सत्कार करे। और कदाचित उसके बाद भी वो दुष्टता नहीं छोड़ता है तो इसके बाद उसको मारे काटे जो करे, अब उसमें दोष नहीं है। सिद्धांत तो यह है, चाणक्य पंडित शायद ऐसा लिखे हैं कि अपना दुश्मन भी घर पर आ जाए तो उसका ऐसा स्वागत करना चाहिए कि वह दुश्मनी को भूल जाए। और भगवान तो गिरी से भी, पर्वत से भी भारी हैं, ये तृणावर्त उठा ले गया और भगवान खुद ही उड़ गए। और यह शिक्षा देने के लिए कि दुष्ट व्यक्ति भी अपने दरवाजे पर आ जाते, अपने घर पर आ जाता है, तो एक बार खड़ा हो करके उसका सत्कार करना चाहिए। और फिर भी वे अपने दुष्टता को नहीं छोड़ता है और उसको मारने में भी कोई दोष नहीं है। वो तृणावर्त आया तो भगवान खड़ा होकर के उसका सत्कार किए, लेकिन वो भगवान के मारने के फेरे में पड़ा तो उसको ही मार दिए। और उड़ने के पीछे एक फिलॉसफी कह रहे हैं कि सब जगह धूल भर गया और साय साय की आवाज आ रही है, मुहूर्तम अभवद गोष्ठम रजसा तमसावृतम। थोड़े देर के लिए पूरा गोष्ठ, पूरा ब्रज अंधकार से और धूल से भर गया। बहुत धूल छा जाता है तो अंधकार स्वाभाविक हो जाता है। बहुत धुआं उठ जाए या धूल उड़ जाए तो अंधकार हो जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पार कर पाता है स्पष्ट रूप से। तो कह रहे हैं कि मुहूर्तम अभवद गोष्ठम रजसा तमसावृतम सुतम जसोदा ना पश्यत तस्मिन् न्यस्तवती जत। अब तो सब जगह धूल उड़ने लगा, बहुत भयंकर वो चक्रवात था। आगे वर्णन है सरकरा भी, वह इंकड़ी पत्थर उड़ करके शरीर में लग रहे थे। अब ऐसा बवंडर आया तो माँ जसोदा तो दौड़ करके आई कृष्ण के सुरक्षा के लिए। माँ जसोदा को यह कभी शंका नहीं थी कि बवंडर कृष्ण को उठा ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। वे तो कृष्ण के भार का अनुभव किए थे कि पहाड़ से भी अधिक भारी लग रहा है, तो उड़ाने का तो कोई भय नहीं था। क्यों दौड़ करके आई? इसलिए कि वे अनुभव कर रही थी कि कृष्ण का जो त्वचा है तो एकदम कोमल है और इंकड़ी, वह इंकड़ी का ब्योछार लग रहा है तो उससे उसको बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो दौड़ करके आए कि उसको ढांके कुछ करे, लेकिन सुतम जसोदा ना पश्यत तस्मिन् न्यस्तवती जत। अब दौड़ करके आई लेकिन जहां रखी थी पुत्र को तो वहां मिला नहीं, वहां तो वो था नहीं। वो प्रयास कर रही थी कि उसको खोजे, लेकिन इतना भयंकर धूल उड़ा था, अंधकार छा गया था कि ना पश्यम कष्टनात्मानम परम चाहि विमोहित
तृणावर्त निशिष्टा भी शर्करा भी रूपद्रुत। अब इतना धूल भर गया था और इकड़ी का ब्यौछार लग रहा था कि जो सयाने व्यक्ति हैं उनको भी उसको सहना कठिन होता था। इकड़ी समझ रहे हैं, बालू से जो थोड़ा और बड़ा साइज का होता है, पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा, तो वो उड़ रहा था, वो शरीर में लग रहा था, तो उसे बहुत कष्ट हो रहा था। वो सब जगह अंधेरा छा गया। यह स्थिति थी कि अपना अंग ही नहीं दिखाई देता था, कोई दूसरा देखने की बात तो दूर है, अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। और माँ यशोदा दौड़ करके आई, लेकिन जहाँ रखी थी तो वहाँ मिला नहीं। माँ यशोदा तो सोची थी कि इतना भारी है कि वहाँ से तो डोला नहीं होगा, लेकिन अब वहाँ तो आया नहीं। इति खरपौन चक्र 500 वर्षे सुतपदवीम अबला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरंत सोच भुवि पतिता मृत वत्स का यथागो। अब तो कृष्ण को वहाँ नहीं पाई और माँ यशोदा अतिशय दुखी हो गई, बहुत भारी चिंता में पड़ गई और वहीं वह गिर गई। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कैसे नव प्रसूता गाय का बछड़ा मर जाए वह दुखी होती है, वैसे माँ यशोदा दुख का अनुभव कर रही। ऐसा देखा जाता है कि कोई गाय अभी अभी बछड़ा का जन्म दिया और बछड़ा मर जाता है, वो बहुत रोती है, इधर उधर दौड़ती है और कभी कभी मूर्छित होकर के गिर जाती है। और माँ यशोदा की वही स्थिति हो गई। अब कृष्ण को खोज रही है, मिला नहीं, तो वह तो भुवि पतिता मृत वत्स का यथागो। जैसे गाय दुखी होती है वैसे दुखी हो करके और वहीं वह गिर गई पृथ्वी पर। और रुदित मनु निशम्य तत्र गोप्य भृषम अनुतप्त धियोस्त्र पूर्ण मुख्या रुद्र अनुपलभ्य नंद सोनुम पवन उपारत 500 बेगे। और माँ यशोदा चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन कुछ देर तक तो उसकी आवाज कोई सुना ही नहीं। वो चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन वो बवंडर का ही आवाज इतना भरा हुआ है कि माँ यशोदा के आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। लेकिन थोड़े देर के बाद बवंडर शांत हुआ। अब बवंडर शांत हुआ और माँ यशोदा के रुदन को सुन करके और वहाँ गोपियाँ जुट गई और माँ यशोदा को वे समझाने लगी कि यशोदा धैर्य रखो, जैसे कृष्ण पीछे अनेक विपत्ति से बचा है तो इस बार भी भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तुम धैर्य रखो, धैर्य रखो, पीछे भी तो बच्चे पर संकट आया है, बचा है ना, तो इस बार भी भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वैसे उसको समझा रही हैं, लेकिन माँ यशोदा तो बार बार मूर्छित होकर के गिर जा रही। अब तृणावर्त के विषय में कह रहे हैं कि तृणावर्तो शांत रह वात्यारूप धरोहरन कृष्णम नभो गतो हंतुम ना शक्नोत भूरिभार भीत। तृणावर्त की योजना थी कि बच्चे को मार करके यहाँ नहीं फेंकना है, एकदम इसको मार करके और कंस के सामने डेड बॉडी डालूंगा कि उसको विश्वास हो जाए। तो चाहता था कि मथुरा में ले जा करके इसको मारे, और जब तक वे ऊपर ले करके जा रहा था तब तक तो भगवान उड़ते गए, लेकिन ज्यों ही अब मथुरा के तरफ उन्मुख हुआ, ब्रज से बाहर ले जाने के फेरे में पड़ा, मथुरा के तरफ स्टीयरिंग मोड़ा तो भगवान अपना भार बढ़ाने लगे। अब भार बढ़ाने लगे तो उसका स्पीड कम हो गया और भगवान का इतना भार बढ़ गया को तृणावर्त तो संशय में पड़ गया कि बच्चा है कि कोई पत्थर का ढोका है, इतना भारी कैसे है।
उसका स्पीड बहुत कम हो गया और इतना भार बढ़ गया कि उसको मुश्किल होने लगा ढोने का। और उसको संशय होने लगा कि बालक है कि कोई पत्थर है। तो वह तो टच करके देखने लगा कि ये पत्थर ही है, लड़का तो इतना भारी नहीं हो सकता है, लगता है कि हम भूल से कोई पत्थर उठा लिए। तो देख रहा है कि इसमें हाथ है, पैर है, ये तो बालक ही है। तो ना, बालक इतना भारी नहीं हो सकता है, हम भूल से पत्थर उठाए थे। हाथ पैर कहाँ से? तो कहा कि वो पत्थर में ही हाथ पैर की आकृति बन गई है। कभी कभी आप लोग देखते हैं ना, जैसे शालिग्राम जी में अब वो नृसिंह देव का आकृति है, किसका किसका आकृति है। तो तृणावर्त सोच रहा है ये पत्थर हम भूल से उठा लिए, बच्चा नहीं है, ये टच करा हाथ पैर, कि ना इतना भारी नहीं हो सकता, ये पत्थर में ही अंगुली उंगली फूट गया है, ये है पत्थर। तो अब तो सोचने लगा कि हमारा तो प्रयास विफल हुआ, पत्थर ले जा करके क्या करेंगे, पत्थर को यहीं ढकेल दें। तो वहीं वो गिराना चाहा, भगवान को पत्थर समझ रहा था, और भगवान को गिराना चाहा, लेकिन भगवान उसके गर्दन को पकड़ करके लंबित हो गए। ये बच्चे का स्वभाव है कि कोई खतरा का जगह है और उसको वहां से कोई ठेलना चाहता है, तो जो चीज मिलता है उसको कचक करके पकड़ता है। तो अब तृणावर्त कृष्ण को ऊपर से गिराना चाहता था, भगवान उसके गर्दन को पकड़े, वो और जोर लगाया, गिराए भगवान और कचक करके पकड़ लिए। अब इतना जोर से उसके गर्दन को पकड़े कि वह हटा नहीं पा रहा था। और गला ग्रहण निश्चय तो दैत्यो निर्गत लोचन, अब उसकी चेष्टा समाप्त हो गई, पस्त हो गया, इतना जोर से भगवान पकड़े, निर्गत लोचन, उसके पुतरी उलट गए। अव्यक्त रावो न्यपतत सह बालो व्यसुर ब्रजे, और उसकी बोलती बंद हो गई, अब कुछ आवाज भी नहीं कर सकता। और कह रहे हैं कि न्यपतत सह बालो व्यसुर ब्रजे, वो तो मर गया आकाश में ही, और ब्रज में एक पत्थर पर वह गिरा। देखिए, जब तृणावर्त कृष्ण को आकाश में उड़ा ले गया और कृष्ण के चिंता में ब्रजवासी बहुत रो रहे थे, बहुत कातर रोदन कर रहे थे, माँ जसोदा मृत प्राय हो रही थी। अब कृष्ण ब्रजवासियों के दुख को देख करके सोचे कि तुरंत वापस होना चाहिए। बहुत ब्रजवासी दुखी हैं, लेकिन कृष्ण के सामने समस्या थी कि हम कहाँ उपस्थित हों। अब दैत्य का गर्दन दबाए और मरने की स्थिति में हुआ, तो अपने वास्तविक स्वरूप में हो गया, जो उसका ओरिजिनल शेप था उसमें आ गया। बहुत बड़ा विशाल शरीर था, भयंकर रूप था। अब भगवान सोच रहे हैं कि यदि इसको गांव में गिराता हूं तो गांव को डैमेज होगा, जिस घर पर गिरेगा तो घर ही ध्वस्त हो जाएगा, और इसको कहीं दूर गिराता हूं तो ब्रजवासियों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वे तो वैसे ही दुखी रहेंगे। तो भगवान विचार करने लगे कि कहाँ इसको गिराऊं कि ब्रजवासियों को कोई क्षति न हो, उनको डैमेज न हो, और उनको सूचना भी मिल जाए, इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो भगवान विचार किए कि गांव में जो बड़ा सा शिला है, पत्थर है, उसी पर गिरावे। गोप लोग गायों को गांव में लाते हैं दुहने के लिए, और दिन भर तो सिवान में ही रहती हैं, चरती रहती हैं, लेकिन संध्या के समय और सुबह के समय आती हैं। बछड़ा गांव में है तो बछड़ा के स्नेह से आती है, उस समय लोग दुहते हैं। तो बरसात के दिन में बहुत मिट्टी न कटे, तो इसलिए गांव में बड़ा वो चट्टान रख दिए थे, उसी पर गाय खड़ा होती थी, वहीं दुहते थे।
तो भगवान विचार किए कि यदि उसी चट्टान पर गिराते हैं तो कोई क्षति भी नहीं होगी और ब्रजवासियों को सूचना भी मिल जाएगी। और कह रहे हैं कि अब वही सहबालो न्यपतत सहबालो व्यसुर ब्रज, वह ब्रज में ही गिरे। जब तमंतरिक्षात पतितम शिलाया, वो जब शिला पर गिरा तो विशीर्ण सर्वायम करालम, वो तो भयंकर था और उसके एक एक अंग खुल गए। इतना जोर से गिरे कि उसका हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया। उदाहरण दे रहे हैं कि वो धड़ाम से वैसे गिरा जैसे भगवान के बाण से त्रिपुरासुर नगर गिरा था। अब कृष्ण वहाँ गिरे और देख रहे हैं, तुरंत देख लिए ब्रजवासी, खास करके स्त्रियां कि वे कृष्ण यहाँ आ गए। वो सबसे पहले स्त्रियां गई और कृष्ण को उठाई। उत्थाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्णम च तस्योररिलंबमानम। वो दैत्य पत्थर पर गिरा तो कृष्ण भी उसके गर्दन को पकड़ करके झूले हुए थे, लटके हुए थे। और स्त्रियां कृष्ण को पकड़ी और मां यशोदा के गोद में प्रदान की। और वे इस घटना पर अपना एक विचार दे रही हैं। वे कह रही हैं, नहीं, पहले तो मां यशोदा का वर्णन कर रहे हैं कि गोप्यश्च गोपाकिल नंद मुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम। अब कृष्ण प्राप्त हो गए तो वे तो अनुभव कर रहे हैं कि बच्चा तो मृत्यु के मुख से ही लौटा। तो वे बहुत प्रसन्न हुए और लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम, वे बहुत प्रसन्न हुए। अब इस घटना पर ब्रज की स्त्रियां विचार दे रही हैं कि अहो बतात्यद्भुत में स रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो भ्यगात पुनः। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि यह दैत्य तो कृष्ण को मृत्यु को ही प्राप्त करा दिया था, लेकिन यह पुनः लौट आया। और टिप्पणी कर रही हैं कि हृंसः स्वपापे न खलः विहिंसितः साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। कह रहे हैं कि यह पापी अपने पाप से मर गया और साधु तो समभाव रखने से बड़े बड़े विपत्ति से बच जाते हैं। भाई घटना पर विचार कीजिए कि आकाश से दैत्य भी गिरा है और कृष्ण भी गिरे हैं। वो दैत्य का शरीर धूर धूर हो गया, कई एक टुकड़ा में हो गया और कृष्ण पर कोई असर ही नहीं। और दो व्यक्ति गिर रहे हैं और दोनों पर प्रभाव अलग अलग है। तो अंतर करने वाला क्या कारक है? तो गोपियां विचार दे रही हैं, ब्रजवासी विचार दे रहे हैं। आज के शब्दावली में पब्लिक ओपिनियन है कि हिंसा स्वपापे न खलः विनष्ट। ये जो दुष्ट है वो अपने पाप से नष्ट हो गया और साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। कृष्ण कैसे बच गया? तो सिद्धांत दे रहे हैं कि जो साधु स्वभाव के हैं, जो सबके प्रति समभाव रखते हैं या दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानते हैं, तो वे तो बच ही जाते हैं। और जो व्यक्ति दूसरे को मारना चाहता है, दूसरे को कष्ट देने की योजना कर रहा है, तो उस कष्ट को वह दूसरे को दे पावे या न दे पावे, उसको तो उसको भोगना पड़ेगा। और जो व्यक्ति समभाव रखता है, समभाव का अर्थ है कि अपने सुख के समान दूसरे के सुख को समझता है, दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझता है, तो इसके चलते वो भयात विमुच्यते, बड़े बड़े संकट से बच जाता है। जो अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझता है,
तो वह बड़े बड़े विपत्ति से बच जाता है। जो दूसरे को कष्ट देना चाहता है तो उस कष्ट को उसे खुद भोगना पड़ता है। तो सिद्धांत दे रही हैं कि यह जो पापी है, बच्चे को, छोटा सा बच्चे को मारना चाहता था, इसी पाप से वो खत्म हो गया। और ये छोटा बच्चा तो मित्र और शत्रु का भाव ही नहीं रखता, तो इसी पुण्य से बच गया। अब और ब्रज के गोपियां बहुत प्रसन्न हैं और कहने लगे कि हम लोग क्या इष्ट कर्म किए हैं, क्या दत्त कर्म किए हैं, क्या पूर्त कर्म किए हैं कि उसका फल उदित हुआ कि बच्चा मर करके जीवित हो गया। एक तो एक तरह से मर ही गया था। वो करें कि हम लोगों का कोई पुण्य होगा। वो 3 चीज का उल्लेख कर रहे हैं कि हम लोग क्या इष्ट कर्म किए, क्या पूर्त कर्म किए, क्या दत्त कर्म किए, और उसी के प्रभाव से ये बच्चा बच गया है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि बापी कुपतड़ागादि देवता यत्नानि च अन्न प्रदाना रामा पूर्त मित्य विधीयते। करें कि हम लोग कोई पूर्त कर्म किए होंगे तो उसी के पुण्य से बच्चा बचा है। वे पूर्त कर्म क्या होता है? तो समाज के लिए, सभी प्राणियों के जल के लिए सरोवर का निर्माण कर देना, कुएं का बनवा देना, बगीचा लगवा देना, मंदिर बनवा देना, या अन्य क्षेत्र के व्यवस्था करना, इसको पुण्य कहते हैं। ये सब ऐसे स्थान हैं कि किसी को भी सुविधा मिल जाती है। भाई कुआं है, कोई पानी निकाल करके पी लेता है, सरोवर है, उससे कोई भी प्राणी जल ले लेते हैं, तो इसको पूर्त कहते हैं। और अग्निहोत्रम तपः सिद्धम वेदा नाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्य देवांश इष्ट मित्य विधीयते। वेद के नियमों का पालन करना, अग्निहोत्र करना, तपस्या करना, अतिथि का सत्कार करना, देवता की पूजा करना, तो इसको इष्ट कर्म कहते हैं। और शरणागत संत्राणम, कोई अपने शरण में आया उसके रक्षा करना, और भूतानाम चाप्य हिंसनम, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, बहिर्वेद्यांश यद्दानम तद्दत्तम अभिधीयते। और कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस समय तो दान देते ही हैं, उसकी बात नहीं है। बिना अनुष्ठान का किसी को कुछ सुविधा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो उसको दत्त कहते हैं। और कह रहे हैं कि इसी का प्रभाव है कि बच्चा बच गया है। और सिद्धांत ये आ रहा है कि जो दान देते हैं, खास करके योग्य व्यक्ति को दान देते हैं, तो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी जैसा है। इससे आपके संकट से भी मुक्ति हो जाती है। यह सिद्धांत है। कोई समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, बगीचा बनवा दिए, सरोवर बनवा दिए, और पशु पक्षी कितना पानी पीते, उसके पुण्य से आपके परिवार में कोई संकट आने वाला है तो रुक जाता है, दूर हो जाता है। और ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये हम लोगों का कोई पुण्य उदित हुआ, इष्ट कर्म का, दत्त कर्म का, पुण्य पूर्त कर्म का, कि ये बच्चा बच गया। और ऐसे वे ब्रजवासी वे विचार कर रहे हैं और वे बहुत प्रसन्न हैं, और यही सिद्धांत दे रहे हैं कि पापी अपने पाप से मर गया और बच्चा समभाव होने के चलते बच गया। और दूसरा सिद्धांत दे रहे हैं कि हम लोग कोई पुण्य किए हों, दान दिए हैं, या वो कोई पूर्त कर्म किए हैं, और उसी के फल से बच्चा बच गया। माँ यशोदा को दिए, अब माँ यशोदा तो कृष्ण को देख करके शोक से दूर ही, और सारे ब्रजवासी परम आनंद में।